After purchasing of land, you should exactly know what kind of product is suitable there. Thank you very much. Welcome to the show. I am honored and privileged to be with you tonight. This is Pankaj K. Das. I am the founder of Legendary Real Estate Hub, and my mission is to help Indian real estate industry, working professionals, developers, construction companies to deliver projects on time with world-class quality without overshooting the project cost. So, can I have your introduction, please? Yeah, myself Abhijit Magdum. I'm a founder of Bima Builders and Developers, and I'm in this construction line as a contractor, as a developer for the last almost 25 years now. I completed my engineering in 1993. Then worked, took experience in about 5 years here and there. Done some few bungalow construction works and started my first site. Since I became builder, I've completed almost 50 odd projects by now, and we have given possession of almost 3,000 houses till now. That's great. That's great. I think you were chairman of CREDAI also, right? No, I was vice president CREDAI chapter of Kolhapur. Okay. Okay. So initially we were very active. अभी time नहीं मिलता ज़्यादा. So we are part of CREDAI, and CREDAI as an organization has definitely helped us, grooming ourselves. So we are very much thankful to CREDAI also. Correct. See, the objective is in next coming 3 to 7 years. I mean, in the real estate industry itself, the growth is going to be substantial. Yeah. 13 to 15% of India's GDP is going to come in from the real estate industry. Absolutely. And we are, striving for a $5 trillion economy. उसमें से $1 trillion economy is going to be contributed from the real estate itself. Yeah. It's second after the agriculture sector in terms of contribution to the GDP. True. So before starting this interview, I'd like you to share one mistake that you have realized over your so many 25, 26 years of experience that every developer must avoid. So like for thank to my God Almighty, I have not done any major mistake. Of course, as a person, as a human, we keep on doing mistakes and we learn from that, right? Correct. What I've seen, across the globe, across the country, what people do, people have got into over trading. See, this developer fraternity, when you start the project and when the booking is good, you get a good amount as initial amount, and people don't calculate how much money they require to complete the project. Before that, they used to invest in some other land. Now, thankfully, because of RERA, that all has been stopped. Now we are only allowed to withdraw 30% of the amount which we get, right? Correct. So now it is more of a RERA regulated है तो कोई issue नहीं है. लेकिन initially definitely people have done over trading. People have gone berserk in land buying because land is something, land is our raw material. Yeah. And, in a growing city like Kolhapur, Pune, or Ahmedabad, or any city for that matter, you don't get land easily. Correct. But back in 1999, when I started, till 2023, still the appreciation of land is crazy. Yes. So people tend to overtrade and buy land with the money of the ongoing project, and they used to borrow money from the banks. They used to borrow money from private lenders and buy land. Correct. So that mistake one should avoid definitely. I feel one should buy land with the money which is from their profit and their own funds, not from the people, not from the customers booking. That's what I feel. One mistake one should avoid. That's what I have seen and I have learned. Thankfully, as I say, thank to God, I have not done that till now. That's what. Correct. I mean, see, from the government perspective, they have established RERA, trying to bring in some rules. But we also, as professionals, should try to make it more professional and take it to the global standards. Like in IT, we are number one in the world. In real estate, in civil, electrical, mechanical, also we should be number one. Absolutely.
from my experience, I have worked with many multinational companies, global companies in the Middle East and India also. Okay. There is a big gap between the multinational companies and us is the fact that we do not follow systems and processes. Systems and processes is one of the primary requirements. Absolutely. As you said correctly, diversion of funds, this, that. This Yeah. should not be. And now we all together, but not only government, it is our responsibility also to see to it that we make our companies to the global standards, right? Right. So having said that, coming back to the next question, what do you think one secret behind the successful delivery of a real estate project? Successfully delivery in the sense, what I give priority to the planning of the project. I mean, after purchasing of land, you should exactly know what kind of product is suitable there. No? Yeah. Like what kind of market we can establish there. Looking at your city, suppose you're doing a project outskirts of city and you're going for a bigger flats, it doesn't serve the purpose, right? So the proper planning and what kind of product to be done on that particular project is the prime thing. Correct. I think success lies there. Second Yes. thing, having good consultants. Number one is good architect, RCC consultant, and the rest of the consultants, n number of consultants required for the project. That is very important. Yes. Third thing is you have to create a balance sheet before start of the project. What kind of profit you are going to generate? You have to plan it in such a way that sales should happen in that way. And luckily, see, the best part of our line is my guru has taught me, बेच के पछताओ ना बेच के ना पछताओ. That is one line I have kept in my mind. आपको माल बेचना है और माल बेचोगे तो ही पैसा आना है, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपर कितना भी बड़ा हो सर, किसी के बैंक में पैसा नहीं होता है. वो सब वो जो भी whatever money we have, we keep on investing on land. So construction के लिए, smooth working के लिए आपको बुकिंग की जरूरत है. Correct. And for that booking, you have to have your good brand name. People should know, people should trust you as a developer, because people should feel safe that I am paying this developer, I'm booking a flat which is going to be completed in next 3 years, 2 years, 4 years down the line. People should have that kind of trust, and that is very important. But I give almost 50-60% marks to the proper planning and proper product size in that particular project. Thank you very much. Whatever you have said is correct, absolutely. On top of that, I'd like to add one thing. Generally, हम लोग मतलब हमारे community में, Indian community में, और not only Indian community, global community, the real estate developers सबसे पहले सोचते हैं कि 80% of the thought process goes for selling. इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देख के हम अगर प्रोडक्ट को ठीक से बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एक बार में बनाएंगे, you need not run after people. People will come to you. I'll just share one example. Steve Jobs has created Apple. There are hundreds of companies making computer, but Apple is Apple. Apple के लिए आप मतलब you will not bargain anything. You will go for the color, you will go for the combination, you will go for the configuration. That's all. So हम लोग अगर प्रोडक्ट को, इनफैक्ट ये सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी across the world global standards में we can make world class products. इंडिया में भी बना रहे हैं, शायद आप भी बनाए होंगे. As you said, planning 70% of the time should be given to the planning, which Japanese people are doing. और हम लोग क्या करते हैं, सीधा ही मतलब प्रोजेक्ट पे उतर जाते हैं काम करने के लिए, which is to be corrected. And प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए. My experience, my thought process, थोड़ा शिफ्ट कीजिए. Make a good product. By default, अब आपके पास कस्टमर दौड़ के आएंगे. There is demand in the market. Everybody wants to have a home. Right, sir, I'll Yeah. correct. I mean, I'll put my thought about the Apple example you have given. Yeah. See, Apple is a laptop or a computer or mobile, right? Okay. So it is manufactured by the machine. हम जो बनाते हैं उसमें मशीन का पार्ट बहुत कम है सर. एक्सकेवेशन के लिए मशीन लगता है, उसके बाद मशीन का कुछ काम नहीं. It is totally labor centric. What the product is, made by laborers. तो laborers है, वो है सर अनपढ़. ठीक है, आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड या इंडिया में मटेरियल क्वालिटी का कोई इशू बचा नहीं. We get high class material. Yes. The quality of the steel, quality of cement, quality of tiles, quality of waterproofing material, n number of material required. We are getting world class quality. But ultimately, see, 60% is material and 40% is labor, right? Correct.
तो जो काम बनाता है वो लेबर ही बनाता है, मशीन का कुछ उसमें हार्डली हार्डली यूज होता है सर, मशीन सब हाथ से काम चल रहा है आज के करेक्ट टाइम में। तो करेक्ट। वो लेबरर्स का प्रॉब्लम क्या है कि उनको कहाँ कौन सिखाता है, यहाँ पे कौन सी स्कूल है जो लेबरर्स को सिखाती है, या यहाँ पे सेंटरिंग अगर वर्कर एक प्लाईवुड का काम कर रहा है उसको कौन सिखा रहा है। वो मिस्त्री कब बनता है, वो पहले मिस्त्री के हाथ के नीचे काम करेगा, बाद में 3-4 साल के बाद सीख सीख के वो मिस्त्री बनेगा, राइट। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। ये आप एप्पल का लैपटॉप या एप्पल का मोबाइल और एक फ्लैट बनाना या एक ऑफिस बनाना, एक शॉप बनाना या आईटी पार्क बनाना या होटल बनाना, 5 स्टार होटल बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड बनाना, ये कंपेयर कर नहीं सकते सर। इसमें थोड़ा 19-20 लेबर का इश्यू है सर इसमें। नहीं, यू आर करेक्ट So एक्चुअली। now in जो future, ट्रेनिंग सिस्टम I है, think there is going to be a lot of mechanical machinery involvement in the construction. Still, I feel कि वो 100% नहीं होगा सर, 100% नहीं होगा। बट ट्रेनिंग पार्ट को थोड़ा सा हम लोग जैसे कि मतलब यूके यूएस जो यूरोपियंस है, यूरोपियन के जो वर्कर्स है, उनको 7 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है आफ्टर दी आईटीआई। बिल्कुल एंड दे आर स्पेसिफिकली स्पेसिफिक टू वन जॉब। वो शटरिंग का काम करेंगे तो शटरिंग ही करेंगे, सरिया बिल्कुल का तो सरिया का ही काम करेगा। बिल्कुल वर्क विद देम। ये हमारे इंडियंस दुबई में जाके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं, वही आके इंडिया में ठीक से काम नहीं करते। देयर इज दैट इश्यू ऑल्सो, हाउएवर आई विल कम बैक टू दैट नाउ। नहीं, अगेन सर, अगेन इसमें डिफरेंस ये है कि एप्पल के लैपटॉप को 1.25 लाख हम पे करते हैं ना, खुशी से पे करते हैं। एप्पल का कोई भी नया मोबाइल लॉन्च होता है, अभी 14 लॉन्च हो गया, 1.5 लाख का मोबाइल है, हम वी गो हैप्पीली बाय इट, राइट। यस यस। लेकिन अगर मैं एक फ्लैट बनाता हूँ और उसी विसिनिटी में कोई और बिल्डर्स फ्लैट बना रहे हैं, सेम विसिनिटी है, सेम लोकेशन है, मेरा प्रोडक्ट थोड़ा बेटर है, ठीक है, लेकिन नोबडी इज रेडी टू पे मी एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दैट। ओके ओके ओके। सी, एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर करोगे तो मेरा प्रोडक्ट अगर बेटर है, सो आई शुड गेट बेटर प्राइस, राइट। यस। आई डू गेट इन माय सिटी, आई गेट, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट गेटिंग इट, बट क्वालिटी की आप बात करो, जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की बात कर रहे हो, वो क्वालिटी देने के लिए मुझे खर्चा भी उतना ज्यादा आएगा, राइट। सपोज आई एम स्पेंडिंग say 500 rupees per square feet in construction cost more, I should get that 500 rupees extra in selling rate, right. So, लेकिन वन पर्सपेक्टिव, दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है, which from my experience, time right approach, हम लोगों का वर्कर्स का, इंजीनियर्स का और सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स का एक माइंडसेट है, मतलब कैसे भी काम को निकाल देना है। एक ही बार जो काम आप ठीक से कर सकते हो, ये हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, उसको आप मॉकअप बनाइए, डेमो कीजिए, डेमो करके शटरिंग करके कंक्रीट करने में व्हाई शुड देयर बी ए लीकेज, वहां डेविएशन क्यों होना है। जो आपका वर्टिकलिटी बोलिए या अलाइनमेंट बोलिए, वो तो कोई भी एक ही बार में करना है ना। अगर उसको आप बना के दोबारा तोड़ोगे, रिपेयर, उसका पैसा कौन देगा। आई एक्सप्लेन माई कॉन्ट्रैक्टर्स दैट वे, आप एक ही बार में ठीक से काम करो, get a good product actually. One of my projects, initially everybody was against me, the contractors. Later on, after the completion of the projects, entire project 20-story building plus minus 3 to 5 mm verticality में था, उसका चेयरमैन आके हमको थैंक्स देके गया। इनफैक्ट दे थैंक देयर पीपल ऑल्सो, बिकॉज अंदर में जो रिपेयर का काम होता है तो ये मैनेजमेंट को नहीं पता चलता है, ये स्टार्ट चलाता है। सो आई एम टॉकिंग दैट वे, उस तरीके से आई कॉल इट फर्स्ट टाइम राइट अप्रोच, राइट। अभी ब्रिक मॉर्टर कर रहा है, एक ही बार में उसको ठीक से कर सकता है, उसको दोबारा मतलब सुपर थॉट प्रोसेस लाइक दिस, मतलब दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। That's so we are now we are working on those proper, making those SOPs. Yeah. So proper SOPs अगर साइट पे फाइनल अगर हो जाते हैं, सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो डेफिनेटली वर्केबिलिटी भी बढ़ता है, क्वालिटी भी अच्छा रहता है। And I think everyone is working on those lines, bigger developers are working on those lines, definitely. अभी मैक्सिमम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे ग्रेज है, आपका एलएनटी है, सपुरजी पालू। Sir, it is all inversely proportional to the volume what we do, right? Suppose I am doing 5 lakh square feet per annum, I can do all these things. If I am doing 50,000 square feet per annum, I won't be able to do it, because I need to spend money on all these things, even proper softwares लेना, proper staff रखना, अच्छा staff hire करना, number of staffs properly deploy करना, on sites, in office, estimation के लिए आदमी है, बार चार्जिंग के लिए आदमी है,
Yes, ये yes, ये सब कब होगा सर? दिस इज ऑल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम व्हाट वी डू। yes, yes, तो yes. ये सो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल ईयर्स में एक डेवलपर जब काम शुरू करता है तो छोटा ही काम शुरू करेगा ना, क्योंकि अभी इंडिया जो चल रहा है वो फर्स्ट जनरेशन डेवलपर्स काम कर रहे हैं, अभी उनका Yes. सेकंड जनरेशन आ रहा है। Hmm. Like my son will be joining in couple of years now, no? But me Hmm. as a developer, when I started, it was my first generation business. Correct, correct, correct. So my first project was 10 flat ka project tha, Okay, okay. 10 flats. Okay. Yeah, yeah. So now Understood. we are doing we're doing hundreds of flats. Correct. This took me 25 years Hmm. Hmm. because I was the son of a doctor. Hmm. I lost my father when I was in ninth. Correct. So वो जो शुरू में जो एक तकलीफ थी, वो तकलीफ से बाहर, मतलब तकलीफ कैसे, खुद की गाड़ी भी खुद को ही लेनी थी, खुद का ऑफिस खुद को ही बाय करना था, खुद का घर भी वो जो भाड़े में रहते थे खुद के घर में शिफ्ट होना था। तो Correct. इनिशियल डेज में तो ये स्ट्रगल में चले गए। Correct, correct. Now my son has a proper platform Hmm. to do all these things, but we are improving, definitely we are improving day by day। हमारे ऑफिस में R&D का जबरदस्त काम चलता रहता है। Right. And हमारे भी प्रोसेसेस हम लास्ट, मतलब हर साल, हर 2 महीने, हर 3 महीने हम काफी सीख रहे हैं। नो एंड कहाँ से सीख रहे हैं सर? हम सीख रहे हैं, हम कोई पुणे के बड़े डेवलपर्स हमारे फ्रेंड्स हैं, मुंबई के डेवलपर्स फ्रेंड्स है, क्रेडाई से सीख रहे हैं। क्रेडाई में पता लगता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। नो वी कीप ऑन मीटिंग पीपल। तो ये Correct. काफी काफी इंप्रूवमेंट हम में भी आ गया डेफिनेटली। Correct. We are not still there, but we'll reach there definitely one day. Thank you. Thank you so much. Going forward, as per the statistics data, only few developers are following the regulatory compliances. What is your say in this regard? Sir, I differ to this now because of, I think I just know about Maharera, Maharashtra RERA Act. महाराष्ट्र रेरा एक्ट में मेरे हिसाब से अभी ऑलमोस्ट 85-90% लोग अभी फॉलो कर रहे हैं सर। Okay, okay, that's great. 85 to 90% लोग फॉलो कर रहे हैं बिकॉज रेरा, महारेरा इज वेरी स्ट्रिक्ट। Yeah. उन्होंने एक भी कंप्लायंस अगर प्रॉपर्ली नहीं किया तो इमीडिएटली नोटिस आ जाता है। तो nobody wants to go into that blacklist of developers because आज सर ऑन रेरा वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। नो Everything is अगर आपका ब्लैकलिस्ट में नाम आ गया तो वो भी अवेलेबल है, आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है वो भी अवेलेबल है। So people see all the track records, right? Before booking, they go into online, they check everything, and then they come to us and book the flats. So nobody wants to be fall into that trap of getting blacklisted and all. I think 85-90% developers अभी मेरे हिसाब से, at least in my city, at least in Maharashtra, I know they're doing a proper job now. Actually, Maharashtra, I'll tell you, in terms of implementation of RERA, they are the number one actually. Absolutely. So from the day one, they Absolutely. spearheading in implementing RERA from the day one. This is thanks to one person, Mr. Gautam Chatterjee. Gautam Chatterjee. Exactly. Who was the RERA chairman. Yes, yes. जबरदस्त पर्सनालिटी है, वेरी Yes. कॉन्फिडेंट ऑफिसर, IAS रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। Yes. उन्होंने 5 साल इनिशियली रेरा का बहुत काम किया। Yes. और आज की तारीख में भी गौतम चटर्जी सर क्रेडाई के कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं। Yeah. एंड दे सी टू इट कि दे टॉक टू अस 1-to-1। Correct, correct. बहुत उन्होंने बहुत अच्छे से रेरा का काम किया। He is the man actually. He's the man. He's the man. Yeah, he's the man behind RERA. Yeah. So thank you very much. Going forward, as the world is emerging very fast in terms of technology in real estate industry, many advanced technologies are introduced now, but still most of the developers using the old methods. What do you say about it? Absolutely, sir. You are right. This transition won't happen in a day. This is a process, right? जैसे मैंने आपको बोला कि अभी 25 साल से हम काम कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा उसमें हर साल हर हमारे ऑफिस में भी काफी काम चल रहा है अभी इसके बारे में कि ये जो प्रोसेसेस है, जो इम्प्लीमेंटेशन, जो नए नए टेक्नोलॉजी करना है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं डेफिनेटली। एंड विल गेट इट देयर, आई मीन विल रीच देयर वेरी सून नाउ। ये जैसे मैंने आपको बोला कि पहले अंडा की पहले मुर्गा, मुर्गी या अंडा, तो ये इसका आंसर अभी तक तो पता नहीं लगा है, लेकिन अभी इट रिलेट्स टू ऑल द वॉल्यूम गेम। जैसे मैंने बोला कि सर अगर वॉल्यूम आपका है, सामने दिख रहा है आपको, जैसे अभी आई विल बी लॉन्चिंग अबाउट 25 लाख स्क्वायर फीट इन नेक्स्ट 6 months। Okay. इन सिटी लाइक कोल्हापुर का सिटी का पॉपुलेशन है 10 लाख पॉपुलेशन। इतनी छोटी सिटी में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये अभी आई एम डूइंग दिस आफ्टर 25 years बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस आने के लिए वो इतना टाइम लगता है ना। अभी आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा, मैं सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा, मेरे इतने फ्लैट्स में बेच पाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि बेचना इज इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर मनी। Yeah.
to have a proper cash flow for the project, the important thing is to sell. Correct. क्योंकि आप बनाते जाओगे और बिकेओगे नहीं तो कहीं ना कहीं जाके आपको रुकना है. आप खुद के कितने फंड से आप कितना कंप्लीट करोगे, तो वो Correct, सेलिंग correct. इम्पोर्टेंट. सो वी आर रीचिंग देयर. आई मीन यू आर राइटली सेइंग कि एडवांस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यूज करना चाहिए, बट आई वुड से कि एक नया डेवलपर है, एक नया डेवलपर ने फर्स्ट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जरूरी नहीं सर कि वो कर पाएगा फर्स्ट प्रोजेक्ट में, उसको थोड़ा टाइम लगेगा सर. Yes, क्योंकि yes. अब ऑटोकैड में आपने काम किया है जिंदगी भर, अभी बीम आया है, Hmm. अभी काफी बड़े आर्किटेक्ट्स और बड़े डेवलपर्स बीम में काम कर रहे हैं. बहुत कम लोग हैं बीम में, नॉट इवन 20 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस. क्यों नहीं सर, क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज कॉस्ट इन्वॉल्व है. यस, बीम के ऊपर काम करने वाले लोग अवेलेबल नहीं है. अगर एग्जैक्टली. बीम के ऊपर काम करने वाले लोग अगर अवेलेबल करने, तो यू हैव टू पे मोर. See, you know, it's all cost related things. यस, So यस. we are still happy in AutoCAD, but one day, sir, पूरी इंडिया बीम पे जाएगा. यस जाएगा, बट Eventually जाना पड़ेगा. गोइंग फॉरवर्ड एज वी हैव ए मास पॉपुलेशन, कॉस्ट भी इतना नहीं आएगा. विद इन 2 to 3 years it Yeah. is affordable to everybody. True, very true. Affordable to everybody. But then yeah, it has kick started. धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है. इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर. उसमें आपको 3D पिक्चर पूरा दिखाई देता है, मतलब True. absolutely clear. Yeah. Moving forward, based on your experience in the industry, what are the 3 major factors responsible for delivering a project on time with promised quality? With promised Quality. okay. So as I think initially first question की टाइम में हमने almost ये cover किया था. मुझे लगता है कि proper planning, once your plan is done, all your consultants should be good consultants. सही drawings सही time पे तैयार होनी चाहिए. Before starting the project, we should have our estimate ready. We should have our bar chart ready. Right. We should have good staff to, on site and in office for this coordination. So this is a coordination, right? Me alone or you alone cannot complete the project. No, it's a teamwork. So we should have a good team. So hiring a good team in smaller cities also, it's very difficult, sir. Correct. Because smaller cities से आप अगर देखोगे तो it is all brain drain. Yeah. Everyone, like, I think you're from Calcutta, right? I am from Bhubaneswar. You're from Bhubaneswar. I think आपको भी ये प्रॉब्लम शायद फेस करने को दिख रहा होगा वहां पे, क्योंकि every boy who is becoming an engineer wants to go to bigger city like Pune, Mumbai, and metros basically. I'm talking about metros. Yes. So 50% people, kids are going to metros and 50% going UK, US, बाहर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. So जो हमारे जैसे सिटी में, छोटे सिटीज में रह रहे हो, जो वो क्वालिटी नहीं है सर. वो बच्चों में वो एजुकेशन क्वालिटी भी नहीं है, ना उनका वो फोकस है. That's what I feel. Yeah, you are right. Actually, you are right. So In fact, आज के दिन में many civil engineers जो IIT में भी पढ़ रहे हैं, I used to give talks in IIT. Recently मैं शुरू किया with a mission में सिविल इंजीनियर्स को यही बोल रहा हूँ कि हमारा कंट्री में इतना काम है, आपको आईटी में जाने का जरूरत नहीं है. Many people want to go to IT as a white collar job. Exactly. Operator का काम करेगा. Exactly. True में people don't want to go to the site and work. Our new engineers, जो upcoming engineers है, so उनको भी मैं बात करता हूँ, उनको भी क्लास लेता हूँ. I teach them. हमारा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आ रहा है, so you don't have to go here and there. Just आपका बैचलर्स के बाद में एक मास्टर्स कर लीजिए, बी स्पेशलिस्ट इन वन सब्जेक्ट, देन यू आर डन. यू कैन डिमांड योर सैलरी. सो दैट उसमें टीचिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम भूलते हैं. I don't know about Odisha, how many engineering colleges are there. In Maharashtra, there is mushrooming of engineering colleges. In Kolhapur, we have 7 engineering colleges, and in Kolhapur districts, we have 17 engineering colleges. ठीक है? तो वो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक तो 50% आपको 12th के मार्क्स आ गए पीसीएम की, तो आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है. ये मेरे हिसाब से गलत है. मुझे आई डिफर टू इट. आई मीन अगर आपको 50% 12th में पीसीएम में मार्क्स आ रहे हैं, यू शुड नॉट बिकम एन इंजीनियर. ये मेरा कहना है. ऑफ कोर्स एटलीस्ट 70% तो होने चाहिए. बिल्कुल. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, आपने इतने कॉलेजेस को परमिशन बना दिया है, इतने कॉलेजेस बन गए, वो कॉलेजेस में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पे लैब्स है, ना वहां पे स्टाफ है. क्योंकि वहां पे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बच्चों को सिखाने वाले जो प्रोफेसर्स है, सो उनको ही पता नहीं कि क्या सिखाना है.
करेक्ट। बिकॉज दे आर नॉट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं है उनको कुछ भी, उन्होंने कभी खुद कंस्ट्रक्शन किया नहीं है सर, उनको खुद को भी 50% मार्क्स आए हुए हैं सर 12th में, जो इंजीनियर बन चुके हैं। they are not some IIT graduate, or they are not from engineers from रेपुटेड BJP इंजीनियरिंग or कॉलेज बिट्स पिलानी, ऐसे इंजीनियर, ऐसे तो स्टाफ नहीं है वहां पे। नहीं है, तो नहीं सर इट इज नॉट ओनली बच्चों का मिस्टेक नहीं है, या बच्चों के डैड मॉम का भी मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक ये पूरे, आई थिंक ये सिस्टम का मिस्टेक है सर। यस यस यस। बी सिविल बन जाता है बेचारा बच्चा, आज की हाँ। तारीख में सर मेरे पास इंटरव्यू में आते हैं, तो उनको एक सीमेंट के बैग में कितना किलो सीमेंट है ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको पता नहीं होता है। पता नहीं है। उन्होंने 4 साल की इंजीनियरिंग में सीमेंट का बैग ही देखा नहीं है सर। ये एग्जाम्पल्स है सर यहाँ पे, इट इज फैक्ट 200%। यस। राइट। सो व्हाट आई फील, ये एजुकेशन सिस्टम 4 साल का इंजीनियरिंग है, उसको तो 5 साल का बना दो आप, या आप 3 साल का एजुकेशन दे दो, 1 साल का उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी कर दो। यस यस। वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी इन द सेंस वो प्रॉपरली होना चाहिए सर। नहीं तो आजकल तो बच्चे आते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि सर हम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करना है, तो मैं बोलता हूँ उनको कि अगर आपको 1 महीने का ट्रेनिंग है या 3 महीने का ट्रेनिंग कंपल्सरी करना है, तो मेरे यहाँ पे स्टाफ के जैसे काम करना पड़ेगा। आपको सुबह 9 बजे साइट पे आना पड़ेगा, रात को 9 बजे घर जाना पड़ेगा, उसकी आपको सैलरी नहीं मिलने वाली, तो ही मैं बाद में सर्टिफिकेट दूंगा। ये मैं क्यों बोलता हूँ सर, वो बच्चे आते तो 2 चीजें सीख के जाए यहाँ से। यस यस, करेक्ट करेक्ट। कितने बच्चे, कितने कॉलेजेस ये प्रॉपरली देखते हैं कि बच्चों का जो इंटर्नशिप का जो 1 महीने का प्रोग्राम है, जो यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी किया है, कितने बच्चे प्रॉपरली करते हैं? नहीं, कोई नहीं दिखता, कॉलेज भी नहीं दिखता। एग्जैक्टली राइट सर। फिर बच्चे को अगर आप प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं सिखाओगे, तो वो जो साइट पे जॉब करने जाएगा उसको क्या आएगा सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। किसी भी बच्चे को लाइनअप सिखाया जाता है क्या कॉलेज में? मेरे हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइंग करके बीसीडी करके एक 400 पेजेस का एक बुक होता था हमारी टाइम इंजीनियरिंग में। हम लोग तो सर्वेइंग भी करते थे, सर्वेइंग भी करते थे चेन पकड़ के। वो किया हमने सर, क्योंकि या हम आई थिंक वी वर इन बेटर कॉलेज यस यस। आज की तारीख में। लेकिन वो जो बीसीडी नाम का एक सब्जेक्ट था, उसका एक 400 पेजेस का एक बुक था सर, उसमें रेड ब्रिक के बारे में, ब्रिक वर्क के बारे में, रेड ब्रिक की क्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है वहां पे। आज भी वही बुक कॉलेज में सिखाया जाता है, जहां पे ऑलरेडी रेड ब्रिक बंद होके हम एएसी ब्लॉक में चले गए, हम माइवन टेक्नोलॉजी में चले गए। ये कहाँ सिखा रहे, कौन से कॉलेज में सिखा रहे हैं? कहीं नहीं, कहीं नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंजीनियरिंग जो आई थिंक मोदी जी ने नया एजुकेशन पॉलिसी लाया है, आई होप कि उसमें सब ये शामिल हो जाए कि आज का टेक्नोलॉजी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में इमीडिएटली फर्स्ट ईयर से सिखाना चाहिए सर। रेड ब्रिक सिखा के कुछ मतलब नहीं है। I mean, you have rightly said actually, education wise we are 50 years behind. हम 50 साल पुराना चीज सिखा रहा है जिसका कोई मतलब। एग्जैक्टली सर। सो वी शुड नॉट ब्लेम द किड्स आल्सो, नो जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, वी कांट ब्लेम देम। No, It's not this thing I came to know because 30 years I have also worked in the corporate, and now 3 years I have taken courses from the world-class mentors. So उसमें हमको मालूम चल रहा है कि whatever we are teaching, I mean it's totally wrong. मैं बेटी को बोल रहा हूँ, my elder daughter is in class 12. okay. I said no need to go for degree, take some mentors. ये मैं आपसे बात करूंगा, we'll talk later on. Let's finish this one first. So next question. 3 breakthrough you got being in the industry for so many years. 3 breakthrough आपका, 3 milestones you have achieved. 3 breakthrough during your entire career in your industry. Sir, milestone as such, I don't know. I have got a lot of awards, and tomorrow I think I'm getting one more award. I just got a call. I have got some recognition in the industry across state. People. I mean, I think सबसे बड़ी बात मुझे लगता है people trust me. Okay, that is the most thing. And the happiness quotient of my clients is, I think, I won't say 100% because it is 100% किसी का भी happiness quotient आएगा नहीं with developer, right? तो मुझे लगता है कि 95 out of 100 मेरा happiness quotient रहेगा. Even after delivering the project, even after delivering the project 10 years back, अभी भी सर हम पुराने बिल्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए, अभी भी आज की तारीख में भी हमारी मेंटेनेंस डिवीजन उसमें जाके काम करती है सर। करेक्ट। आई थिंक आई फील वेरी मच सेटिस्फाइड। रात को नींद अच्छे से आती है, और सबसे है कि हमने किसी को चीट किया नहीं है सर। वो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है मुझे, क्योंकि ऐसे कोई बोलता नहीं कि अभिजीत ने मुझे चीट किया या भीमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स या इसकी कंपनी ने चीट किया, ऐसे कोई नहीं बोलता है, क्योंकि हमारा पेपर वर्क भी सर एकदम सही रहता है। वी हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स
हमारा सेल लीड, हमारे एग्रीमेंट टू सेल्स, ये इतना प्रॉपरली टाइम में हो जाता है ना, तो वो जो एक क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन होता है ना कि मैंने घर लिया है 50 लाख का और प्रॉपर्टी कार्ड पे मेरा एज ओनर नाम लगा है, गिविंग पोजेशन टू देम, फॉरगेट पोजेशन के बाद नहीं, हम पोजेशन के दिन में उनका नाम लगा के देते थे। वी ट्राई एंड अचीव दैट, आई थिंक वही। और क्या सर, सेटिस्फेक्शन है, बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है सर, क्योंकि हम घर देने का बहुत बड़ा काम करते हैं। मेरे गुरुजी ने बोला था कि सबसे बड़ा जो काम है एक एक इंसान की जिंदगी में, अचीवमेंट जब बोलते हैं ना, तो क्या होता है सर, एक घर लेना, अच्छा एक गाड़ी लेनी है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन करवाना है, राइट। तो उसमें से सबसे एक्सपेंसिव काम हम करते हैं लोगों का, है ना। सबका जो घर का, भले वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो, डिपेंड पर्सन सैलरी और पर्सन इनकम, लेकिन वो जो घर देने का जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो बहुत बड़ा है सर। और उसका आई थिंक आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं वो पुण्य लगता होगा, है ना। सेटिस्फाइड कस्टमर से मुंह से अगर उसको, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है और उसको ऐसे लगता होगा कि यार ये बंदे ने अच्छा काम किया, तो कहीं ना कहीं हमें वो पुण्य लगता होगा। आई टोटली इनफैक्ट इट इज मोर देन मनी। आप जो बात बता रहे हो, मेरे को कोई ये बात बताया नहीं। सर मनी डजंट मैटर, यू नो, ऑफ योर हार्ट। सर फ्रैंकली अभी अगर आपको लगता है कि 25 साल के बाद मैं मनी, सिर्फ मनी के लिए काम करता हूँ, नहीं सर, सिर्फ मनी के लिए काम नहीं करता हूँ मैं अभी, क्योंकि मनी इज डन। आई मीन, क्या लगता है आप, यू नो, अगर आपकी लाइफस्टाइल, वी आर अ डेट फ्री कंपनी सर, एंड आई एम अ डेट फ्री पर्सन, तो रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है जिंदगी में। तो इट इज नॉट ओनली मनी, ऑफ कोर्स मनी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर वर्किंग हार्ड, राइट। मनी इज नॉट, ऐसे नहीं बोलूंगा कि मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक सेटिस्फैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ। Of We course, want to deliver better and better products day by day. serving the people and उनका blessing is much bigger than. सर सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताए कि आप, हमारी आपकी जिंदगी क्या है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो भी जो भगवान ने दिया उम्र, अपन जी के निकल जाएंगे, राइट। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हम बना के जा रहे हैं ना, वो मॉन्यूमेंट करके खड़े रहेंगे वहां पे। That is what is more. नेक्स्ट कपल ऑफ जनरेशंस, माय बच्चास हैव सीन दैट, नाउ माय बच्चास विल सी इट, कि मेरे ग्रैंडफादर ने बिल्डिंग बनाई थी, दे विल फील प्राउड अबाउट दैट, आई होप दे विल, है ना। Thank you so much. Thank you so much. ये बहुत मतलब बड़ी बात की है. This is what is required. Just one message for the audience who belong to the real estate industry. One-liner statement. आप क्या? Is it for the real estate developers or is it for the customers? Real estate developers. सर ये रियल एस्टेट डेवलपर बनना भी नसीब में चाहिए। हर कोई रियल एस्टेट डेवलपर बन नहीं सकता है, उसके लिए अलग क्वालिटी इंसान में चाहिए। सबसे बड़े गट्स चाहिए सर, Yes. बहुत बड़े गट्स लगते हैं उसके लिए, क्योंकि ये गेम बड़ा है ना, ये लाखों का गेम नहीं, ये करोड़ों का गेम है। Correct. आपने देखा होगा सर इंडस्ट्री में जो स्टॉलवर्ड्स हमने देखे हुए हैं, मतलब 25 साल पहले जिनसे हमने सीखा हुआ है, 15 साल पहले जिनसे हमने सीखा हुआ है, वो लोगों ने कुछ तो मिस्टेक, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने पूछा था कि कौन सी मिस्टेक आपने की है, Yes, yes, yes. ऐसे उनके हाथ से भी ऐसे कि कोई ब्लंडर मिस्टेक होगी, गलती से होगी सर, इट्स अ मिस्टेक, बट दे आर नोवेयर इन द इंडस्ट्री नाउ, है ना। क्योंकि एक ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मतलब सबसे गलत बात ये है कि आपकी मिस्टेक, एक भी मिस्टेक आपकी इंडस्ट्री सहन नहीं कर पाती सर। मतलब आप टॉप से बॉटम में आने के लिए आपको टाइम नहीं लगता है। Yes, yes. तो यही है कि सर अच्छा काम करो, अच्छा मेहनत करो, है ना, और अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करो, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता सर। एंड सब रूल्स हमें, एक सर हम बोलते हैं कि जो प्लान सैंक्शन हम करवाते हैं उससे 1 इंच भी हम यहाँ वहाँ डाइवर्शन नहीं करते सर। हम रूल्स को पकड़ के ही काम चलते हैं, मतलब एक रूल रेगुलेशन फॉलो करो, टाइमली डिलीवरी करो, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट दे दो। अपने कस्टमर को अगर बोला है कि आपने 32 इंच बाय 32 इंच का आप टाइल दे रहे हो और आपने अगर उससे बड़ा टाइल दिया, बड़ा साइज का टाइल दिया विदाउट चार्जिंग हिम, तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। दैट्स व्हाट वी डू। हम जो एग्रीमेंट पे लिखते हैं, जो हम स्पेसिफिकेशन देते हैं, उससे मच 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 बेटर स्पेसिफिकेशन हम एक्चुअली यूज करते हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक ये डे वन से हमने ऐसे ही किया है कि हम लिखते वक्त एग्रीमेंट में जो स्पेसिफिकेशन देते हैं उससे बेटर स्पेसिफिकेशन हम हर प्रोजेक्ट में देते हैं, हर प्रोजेक्ट में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो सर क्या है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन लोगों का सेटिस्फेक्शन का जो कॉस्ट है ना सर, क्या है, आई डोंट नो आपके भुवनेश्वर में पर स्क्वायर फीट एडवर्टाइजिंग बजट कितना है, आई डोंट नो। आई हैव सीन पुणे बिल्डर्स स्पेंड अबाउट 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट देयर एडवर्टाइजमेंट बजट, मार्केटिंग बजट, ओके। इन मुंबई आई हर्ड दैट कॉस्ट इज मोर देन 1000 रुपीज। ओवरऑल बजट में मार्केटिंग बजट कितना होता है परसेंटेज वाइज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? सो आई थिंक इट वेरीज सर। फॉर मी my marketing budget is not even 5 rupees per square feet. Okay. Because it is all mouth publicity.
It is all about progress. Word So of we, I say I know I tell myself I'm saving 50-100 rupees per square feet of marketing. Let's spend on construction. Let's spend on the specification. Let's spend on the quality. I Correct. think ये रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अगर ये धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा बन जाएगा इंडिया. वैसे भी अच्छा बन रहा है सर. आपने पहले इंट्रोड्यूस करते हुए बोला था. सो मैं कल ही सर बिल्ड इंडिया करके एक प्रोडक्ट ये देख रहा था डिस्कवरी में. डिस्कवरी प्लस में बिल्ड इंडिया करके एक सीरीज आ रहा है. आप देख लो सर. इंडिया में लास्ट 5 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी काम हुआ है ना, हर प्रोजेक्ट के बारे में 20 मिनट का उसमें एक एक एपिसोड है. मतलब Okay. क्या काम हो रहा है सर. क्या वॉल्यूम का काम हो रहा है. क्या रोड्स बन रहे हैं, क्या ब्रिजेस बन रहे हैं, नो मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं. जबरदस्त काम हो रहा है सर इंडिया में. Jabardast. Last 7-8 years means tons of work has been done. With I've heard even Bhubaneswar has done some fantastic work. yeah, Bhubaneswar Bhubaneswar is the one of the third, planned city in India. Yeah, yeah. Chandigarh, same guy planned Bhubaneswar. Right. So Chandigarh, Bhubaneswar, and Gandhinagar. These are the three Yeah. in India. True. Yeah. We would like to visit once to Bhubaneswar. Sure. I mean, thank you very much. आपने बहुत अच्छा लगा आपसे.